Hey everyone, I'm Dr. Nishant Gupta and welcome to Unacademy. Guys, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैट 2008 के गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक सेट. इस वेरी ब्यूटीफुल सेट based on the concept of round robin. So let's start. Guys, this is my profile. I'm Dr. Nishant Gupta and this is my Telegram group. You can also follow me on Unacademy and plus subscription you can use my code PNG. While buying the subscription, you can go for Iconic or the Plus subscription. Iconic includes all the benefit of Plus subscription, and in addition to the Plus benefits, you'll get the personal mentor, test analysis and report, other management entrance test preparation, and these are the results of the last year. So you could be the next one. A bumper offer is going on right now. Buy 6 month subscription, you'll get 1 month extra. So offer is extended on popular demand. Again, don't forget to use code DNG Live. Guys, this is a set which came in CAT 2008. This is from the topic games and tournament. When we talk about games and tournament, there are two formats that we discuss generally. One is a knockout tournament and the other one is round robin or league match. The knockout tournament, name suggests the knockout tournament, जो हार गया वो बाहर गया. तो आप मैच खेल रहे हैं, इफ यू win the match, stay in the match. अगर आप हार जाते हो, so you'll be out of the tournament. In a round robin टूर्नामेंट और लीग मैचेस की अगर हम बात करें, तो here every player gets a chance to play with every other player once or twice depending on the condition of the question. तो राउंड रॉबिन में हर एक आदमी को एक मौका मिलता है, हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को. इफ इट इज अ टीम टूर्नामेंट देन टीम, और अगर इंडिविजुअल बेसिस पर टूर्नामेंट चल रहा है, इंडिविजुअल प्लेयर्स का टूर्नामेंट चल रहा है, इंडिविजुअल प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले विद द ओपोनेंट्स, विद एवरी ओपोनेंट. जनरली अगर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में लेट्स से there are six players and every player play with every other player exactly once. तो आप अगर ए बी सी डी ई एफ प्लेयर्स की बात करें, तो ए विल गेट अ चांस टू प्ले विद बी सी डी ई एंड एफ. सेम वे एवरी अदर प्लेयर बी विल गेट अ चांस टू प्ले विद ए सी एफ. एवरी प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले विद एवरी अदर प्लेयर. है ना, राउंड रॉबिन और लीग मैचेस वी आर टॉकिंग अबाउट. और कई बार ऐसा भी होता है that every player will be given two chances. Every player will play with every other player two matches. तो in that case number of matches ज़्यादा हो जाएंगे. जब हम राउंड रॉबिन की बात करते हैं and every player is playing with every other player exactly one, the total number of matches in the tournament will be NC2. Total number of matches, that case total number of matches the round robin tournament will be NC. N is number of teams or player, n is n minus 1/2. बिकॉज मैच खेलने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत है. ए का मैच बी के साथ हो रहा है या बी का मैच ए के साथ हो रहा है, दैट विल बी काउंटेड एज अ वन मैच. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं. इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट टू टीम्स और टू प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स, दैट इज NC2. तो यहाँ तक हम सभी लोग कनेक्टेड हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट.
this. So this data says in a sports event, 6 teams A, B, C, D, E, F are competing against each other. Matches are scheduled in 2 stages. Each team plays 3 matches in stage 1 and 2 matches in stage 2. There are 6 teams. यहाँ पर 6 teams हमारे पास हैं. There are there are 6 teams A, B, C, D, E, F, and every team will play 3 matches in stage 1. Stage 1, 3 matches. Stage 2, there'll be 2 matches. So in all, every team will play 5 matches. Every team will play 5 matches. अपने साथ तो मैच नहीं खेल सकते ना, तो 6 teams, तो हर एक के 5 मैच होंगे. No team plays against the same team more than once in the event. इसका मतलब अगर ए के 5 मैचेस होंगे तो वो इन्हीं के साथ होंगे, और 5 लोगों के साथ एक एक मैच होगा. एक मैच बी के साथ, एक सी के साथ, एक डी के साथ, एक के साथ और एक एफ के साथ. Same goes with every other player. No ties are permitted. The match can result in either win or loss or a tie. But since it is already given that no ties are permitted in any of the matches, इसका मतलब हर एक मैच का रिजल्ट विन और लॉस में रहा होगा. सो एक मैच में एक बंदा विनर रहा होगा और एक प्लेयर, एक टीम लूजर रही होगी. तो नो टाइज आर परमिटेड इज गिवन. ऑलवेज लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन. ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन. द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर गिवन बिलो. तो हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 की कुछ इंफॉर्मेशन जो मिली है वो इस तरह से है कि स्टेज 1 में देयर इज वन टीम won all 3 matches. आउट ऑफ दीज 6 टीम्स, एक टीम है जो अपने तीनों मैच जीत गई है. एंड देयर आर 2 टीम्स दैट लॉस्ट ऑल द मैचेस. 2 टीम्स ऐसी हैं जो अपने सारे मैचेस हार रही हैं. तो 3 टीम्स की बात तो यही हो गई है. 3 टीम्स आउट ऑफ 6, 3 तो यही है. एक जिसने अपने तीनों मैचेस जीते हैं स्टेज 1 में, के लिए तीनों जगह विन 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 काउंट होगा. एंड देयर आर 2 टीम्स इनके तीनों लॉस काउंट होंगे. बट सिंस देयर आर 6 टीम्स, तो अभी 3 टीम्स का रिजल्ट और पता लगाना बाकी. डी लॉस टू ए बट वन अगेंस्ट सी एन एफ. तो डी ए से हारा है, एक मैच हारा है और 2 मैच जीता है. तो डी इनमें से तो नहीं हो सकता, बिकॉज या तो ये तीनों मैच जीत रहे हैं या तीनों मैच हार रहे हैं. सेम वे ई लॉस टू बी एंड वन अगेंस्ट सी एन एफ. ई एक मैच हारा और 2 मैच जीत गया. तो डी और ई ये 2 लोग इनमें काउंट नहीं हो रहे हैं. बी ऑल्सो लॉस्ट एट लीस्ट 1 मैच. तो बी भी इनमें नहीं है, बिकॉज अच्छा एटलीस्ट 1 मैच है. बी लॉस्ट एटलीस्ट 1 मैच. बी कैन बी अमन, लेकिन ये लिखा हुआ है ई लॉस टू बी. ई लॉस टू बी इसका मतलब बी एक मैच तो जीता ही जीता है बी के अगेंस्ट, और एक हारा भी है. तो वो इनमें नहीं होगा. बी कैन नॉट बी. तो ये जो मैचेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आएगा ए, सी एंड एफ. ओनली दीज आर द पीपल जो एक तीन, या तो तीनों मैच पे हैं या तीनों मैच हारे हैं. ये वो 3 लोग. तो बी एक मैच जीता है, एक हारा है और एक की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज 1. डोंट नो हु विच इज द टीम अभी के लिए. तो इस डेटा को हम किस तरह से टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस तरह से लिखना वुड बी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जनरली व्हेन n teams are given, ideally you should draw a table of n+1 into n+1. मतलब अगर 6 teams की बात हो रही है, we are talking about 6 teams, तो नॉर्मली हम एक टेबल बनाते हैं 7x7 का. कंस्ट्रक्ट अ 7x7 टेबल, जिसमें आप फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट बॉक्स छोड़कर टीम्स के नाम लिखेंगे. ए, बी, सी,
एंड एफ, दीज आर द टीम्स विच आर पार्टिसिपेटिंग। फिर भी यही टीम्स रिपीट कर लीजिए, ए बी सी ई एफ। मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है एंड आई कॉल इट अ रिमार्क्स का कॉलम। से हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो वो यहाँ पर हम, अब इस टेबल में हमने रो वाइज और कॉलम वाइज टॉप पर भी और एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी हमने टीम्स के नाम लिखे। ये मैच, दिस बॉक्स डिनोट्स टू अ मैच ऑफ ए विद ए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ए का मैच ए के साथ नहीं हो सकता, बी का मैच बी के साथ नहीं हो सकता, सी का मैच सी के साथ नहीं हो सकता, डी डी के साथ मैच नहीं खेलेगा, अपने साथ मैच नहीं खेल सकते, सेम वे ये मैचेस नहीं। बट इफ यू लुक एट दिस बॉक्स, लुक एट दिस बॉक्स, ये ए और बी के मैच को डिनोट कर रहा है। एंड इफ यू लुक एट दिस बॉक्स, ये भी ए और बी के मैच को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों ही बॉक्सेस सेम मैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर फर्क क्या है? हम हमेशा इस टेबल को फिल करने के लिए एक चीज ध्यान रखेंगे। नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि हम इस बॉक्स में टीम ए का रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे अगेंस्ट दिस टीम, अगेंस्ट दिस टीम। मतलब इस बॉक्स में बी का रिजल्ट आएगा ए के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्सेस बी मैच में, ए वर्सेस बी मैच में ए वन द मैच, बी लॉस। ए अगर ये मैच जीत गया है तो हम ए का रिजल्ट यहां पर लिखेंगे कि ए ये मैच जीत गया, विल राइट डब्ल्यू, विल राइट डब्ल्यू अगेंस्ट बी। ए का रिजल्ट बी के अगेंस्ट, इट इज अ विन। अगर राउंड्स की बात दे रहे हैं तो आप W1 W2 W3 लिख सकते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को डिनोट करेगा। तो W1 will denote to round 1 win, L1 will denote to round 1 loss, हार गया है कोई। W2 means win in second round, lost in second round। इस तरह से हम इस डेटा को फिल करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं W, that denotes to कि C अपना मैच जीत गया E के अगेंस्ट। अब सी अगर ई से मैच जीत गया है तो ई अपना मैच सी से हार गया होगा, तो दिस विल बी काउंटेड एज अ लॉस। तो एक ही मैच की एंट्री हमें दो बार करनी है, बट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की। तो लेट्स ट्राई दिस नाउ। मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ, दिस ए एंड एफ टीम्स, दिस ए एंड एफ। ये मैचेस पॉसिबल नहीं है, टीम अपने साथ नहीं खेल रही होगी, हम क्रॉस लगा। लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1। सबसे पहले स्टेज 1 का डेटा हम लोग समझने की। स्टेज 1 है वन टीम वन ऑल 3 मैचेस। कोई एक टीम है जो अपने तीनों मैचेस जीत गई। अभी के लिए हमें नहीं पता है तो कौन सी टीम है जो अपने तीनों मैचेस जीत गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन है देयर आर 2 टीम्स दैट लॉस्ट ऑल द मैचेस। तो 2 टीम्स ऐसी हैं जो अपने सारे मैचेस हार रही हैं। किसी टीम के लिए 3 टाइम्स W आना है, W1 W1 W1। बाय W1, W डिनोट्स टू विन, W डिनोट्स टू विन एंड फर्स्ट राउंड है तो हम W1 लिख रहे हैं। 2 टीम्स हैं जिनके लिए L1 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 आना है, L1 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 आना है। किसी एक की जीत दूसरे की हार भी होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है कि D लॉस टू A, D अपना मैच A से हार गया, तो हम D का रिजल्ट लिख रहे हैं A के अगेंस्ट। सिंस D लॉस्ट दिस मैच अगेंस्ट A इन फर्स्ट राउंड, तो हमने D के आगे D का रिजल्ट लिखा। हमने रो वाइज जिसका नाम पढ़ा है उसका रिजल्ट लिख रहे हैं, कॉलम वाइज के अगेंस्ट। ये हमने डी का रिजल्ट ए के अगेंस्ट लिखा है कि डी ए से हार गया है। क्योंकि डी ए से मैच हार गया है तो ए अपना मैच डी से जीत गया होगा। इसी मैच का रिजल्ट ए का रहा होगा, ए वन अगेंस्ट डी फर्स्ट राउंड। इसी मैच की एंट्री हमने 2 बार की है, तो डी
लॉस्ट टू ए बट वन अगेंस्ट सी एंड एफ। डी सी और एफ से जीत गया है, तो डी अगर सी से जीत रहा है तो डी का रिजल्ट सी के अगेंस्ट, डी का रिजल्ट सी के अगेंस्ट राउंड वन में W1, एंड डी क्योंकि सी से जीत गया है तो सी अपना यही मैच डी से हार जाएगा। डी का रिजल्ट हमने लिखा डी के अगेंस्ट कि सी लॉस टू डी इन फर्स्ट राउंड। डी ऑल्सो वन इज मैच अगेंस्ट एफ, डी एफ से भी अपना मैच जीत रहा है, तो डी अगर एफ से अपना मैच जीत रहा है तो डी का रिजल्ट हमने W1 लिखा, फर्स्ट राउंड में विन है अगेंस्ट एफ, तो एफ का रिजल्ट डी के अगेंस्ट हो जाएगा L1, ही लॉस्ट अगेंस्ट डी, एफ लॉस्ट अगेंस्ट डी इन फर्स्ट राउंड। तो ये डेटा जब हमने इसकी एंट्री की तो ये 3 बार की जगह 6 जगह पर एंट्री हुआ, तो 3 मैचेस जिनकी बात हो रही थी और एंट्री 6 टाइम हुई है क्योंकि उनके ओपोनेंट्स के भी हम साथ साथ रिजल्ट लिए। नेक्स्ट इज E lost to B, E lost to B in first round, तो E का मैच अगर ये हार रहा है फर्स्ट राउंड में इट इज L1 E के अगेंस्ट, और B अपना मैच E से जीत गया, देन E अपना मैच से जीत गया फर्स्ट राउंड का, एंड E वन अगेंस्ट C एंड F, E C और F से दोनों से जीत रहा है, तो E C से जीत रहा है W1, इसका मतलब हुआ कि C E से हार रहा है, C E से हार रहा है, E F से भी जीत रहा है, E F से अपना मैच जीत रहा है, तो F अपना मैच E से हार जाएगा, F अपना मैच E से हार जाएगा। यहां तक अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो एक बार से जल्दी से देख लें कि हमने इन दो स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है। ऑल वी हैव डन इज कि हम ये D लॉस टू A वाला स्टेटमेंट हमने लिखा कि D A से मैच हारा है L1, इसका मतलब A D से जीत गया, D C और F से मैच जीत रहा है तो C और F अपना मैच D से हार गए। सेम वे हम E के लिए भी ये एंट्री कर सकते हैं। B lost at least one match in stage 1, lost at least one match in stage 1। अब एक चीज देखिए, अगर B अपना एक मैच हारा है, कम से कम एक मैच हारा है, तो B अपने तीनों मैचेस नहीं जीत सकता ना। ये आदमी जो अपने तीनों मैच ही जीता है ये B भी नहीं हो सकता, C तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका है स्टेज 1 में। ये D भी नहीं हो सकता बिकॉज D ऑल्सो लॉस्ट 1 मैच इन स्टेज 1, E also lost 1 match against B in stage 1, and F has already lost 2 matches in stage 1. So who can win all 3 matches of stage 1? It is A. सिर्फ A ही वो आदमी है जो स्टेज 1 में अपने तीनों मैचेस जीत सकता है। अब A ऑलरेडी D से अपना एक मैच जीत चुका है, हम चेक करते हैं कि A किस किस से अपने मैचेस जीत सकता है। इसकी आगे की इंफॉर्मेशन हमें कहती है F did not play against the top team of stage 1. F स्टेज 1 की टॉप टीम के अगेंस्ट खेला ही नहीं। हमें तो पता लग गया कि टॉप टीम ऑफ स्टेज 1 इज A, तो इसका मतलब हुआ कि राउंड 1 में स्टेज 1 में A वर्सेस F नहीं हुआ है, ये वाला मैच नहीं हुआ है, तो F के साथ तो यहाँ पर मैच ही नहीं हुआ। E के साथ A का मैच राउंड 1 में नहीं हुआ, रीजन E अपने तीनों मैचेस, हर एक टीम को 3 मैच खेलने स्टेज 1 में, और E अपने 3 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है अगेंस्ट B, C एंड F। तो E अपने 3 मैचेस खेल चुका है जिसमें उसका ओपोनेंट A नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि A का मैच स्टेज 1 में ना तो E के साथ हुआ और ना ही F के साथ हुआ, तो बचे हुए 3 लोग जिनके अगेंस्ट वो खेल सकता है 3 मैचेस वो B, C और D होंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, A F के अगेंस्ट इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि F टॉपर टीम के अगेंस्ट नहीं खेला है स्टेज 1 में, ठीक, और E के अगेंस्ट इसलिए नहीं खेल सकता है A बिकॉज E अपने ऑलरेडी 3 मैचेस पूरे कर चुका है और उसके तीनों मैचेस में वो B, C और F के साथ खेल रहा है, इसलिए A का नाम नहीं आया। तो A
अपने 3 मैचेस खेला BCD के साथ, और क्योंकि वो अपने तीनों मैचेस जीता है फेज 1 के, तो इट विल बी W1 हम A का रिजल्ट B के अगेंस्ट, A का रिजल्ट C के अगेंस्ट और D के अगेंस्ट हमने लिखा। अब अगर A अपना मैच B और C से जीत रहा है स्टेज 1 में, तो B अपना मैच A से हार रहा है स्टेज 1 में, C इज ऑल्सो लूजिंग टू A इन स्टेज 1। यहां तक की भी कहानी हम सभी लोगों को क्लियर है। अब अगर हम देखें तो A अपने 3 मैचेस पूरे कर चुका है, इसके तीनों मैचेस हो चुके हैं स्टेज 1 के। B का एक मैच बचा हुआ है, 2 मैचेस का रिजल्ट दिखाई दे रहा है स्टेज 1 के, एक मैच अभी भी बचा हुआ है। C अपने 3 मैचेस खेल चुका है, he is done with his 3 matches, he is also done with his 3 matches, E is also done with his 3 matches। F के 2 मैच हुए हैं, एक मैच बचा हुआ है, तो इसका मतलब जो B का मैच बचा है वो F के साथ हुआ होगा। तो F और B का एक मैच स्टेज 1 में हुआ है, F और B का एक मैच स्टेज 1 में हुआ है। हमें साथ साथ ये भी गिवन था कि देयर आर 2 टीम दैट लॉस्ट ऑल 3 मैचेस इन स्टेज 1। स्टेज 1 में 2 टीम ऐसी थी जो अपने 3 मैचेस हार गई है। बी तो एक मैच जीत चुका है, तीनों नहीं हार सकता। एक तो सी मिल गया, तीनों मैच हार गया है। डी 2 मैच जीत चुका है, तीनों नहीं हार सकता है। ई दो मैच जीत चुका है, तीनों मैचेस नहीं हार सकता। ए भी नहीं हार सकता। तो इसके अलावा जो दूसरा बंदा अपने तीनों मैचेस हार सकता है ऑफ स्टेज 1, दैट इज एफ। यानी एफ और बी के मैच में एफ हार गया, एफ लॉस्ट इट अगेंस्ट बी, और बी ये मैच जीत गया एफ के अगेंस्ट। मैं कैसे पता लगा बचा मैच इनका है? क्योंकि बाकी सब लोगों के 3-3 मैच हो चुके हैं। ये कैसे पता लगा कि एफ और बी के मैच में एफ ही आ रहा है, बी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 2 टीम्स ऐसी चाहिए थी जिनके 3-3 मैचेस वो हारे हो। तो एक मैच, एक तो सी टीम थी जो अपने तीनों मैचेस हार रही है स्टेज 1 में, एंड द अदर टीम कुड बी एफ। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी ए 3 मैच जीत चुका था, बी कम से कम एक मैच जीता ही, एक मैच हारा था और एक कम से कम एक जीता भी था। इट वॉज गिवन कि बी से हारा था तो बी से जीत गया था। ये लोग अपने मैचेस जीते थे, इनके बारे में पता था। तो सी एंड एफ कुड बी द गाय जो अपने दोनों मैचेस हार सकते थे स्टेज 1 में। तो स्टेज 1 इज डन। लेट्स मूव टू द स्टेज 2 वाला पार्ट। स्टेज 2 में लिखा है द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस। हु इज द लीडर ऑफ स्टेज 1? ए। ये तो देखा, ए अपने तीनों मैचेस जीता था, तो ए अपने अगले दोनों मैचेस हार गया। और ए के अगले 2 मैचेस हो किसके साथ रहे? एक ई के साथ और एक एफ के साथ। ई के साथ इसका मैच हुआ और ये हार गया, तो ए का रिजल्ट है ही लॉस्ट इन स्टेज 2 अगेंस्ट ई। सेम वे ही लॉस्ट इन स्टेज 2 अगेंस्ट एफ। तो इसका मतलब हुआ ई और एफ स्टेज 2 का अपना ये वाला मैच जीत गए ए से। ये अपना मैच जीत रहे हैं ए से, ठीक है। ए ई और एफ से हार रहा है, ई और एफ ए से अपना मैच जीत रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द 2 टीम्स एट बॉटम आफ्टर स्टेज 1। कौन सी 2 टीम की बात कर रहे हैं जो स्टेज 1 के बाद बॉटम में थी? बॉटम में कौन कौन सी टीम थी? एक सी टीम थी और एक एफ। इनकी बात हो रही है, सी एंड एफ, बिकॉज ये तीनों मैचेस हारे थे ना अपने। वन टीम वन बोथ द मैचेस। एक टीम है जो अपने दोनों मैचेस जीत गई, while the other lost both the matches। तो सी और एफ में से एक टीम ऐसी है जो दोनों मैचेस जीत गई और एक टीम अपने दोनों मैचेस हार गई। क्योंकि एफ ऑलरेडी एक मैच ए के अगेंस्ट जीत चुका है, तो एफ अपने दोनों मैचेस नहीं हार सकता। वो ऑलरेडी ए के अगेंस्ट सेकंड स्टेज में एक मैच जीत गया है, तो इसका मतलब हुआ कि एफ अपने दोनों मैचेस जीता होगा। तो एफ का दूसरा मैच बचा हुआ जो है वो है सी के अगेंस्ट। तो अगर एफ सी से जीत रहा है तो सी एफ से अपना मैच हार जाएगा। सी विल लॉस टू एफ, ये हो गया। और सी और एफ में से एक ने दोनों मैचेस जीत लिए और दूसरे को अपने दोनों मैचेस हारने। तो सी अपने दोनों मैचेस अगर हारेगा तो एक तो वो हार ही गए एफ से, द अदर मैच ही लूज अगेंस्ट बी। तो बी से हार रहा है, तो बी सी से फेज 2 का अपना मैच जीत जाएगा, फेज 2 का अपना मैच जीत जाएगा। यहां तक हम सब लोग सारी चीजें समझ पा रहे हैं?
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, there's one more team that lost both the matches in stage 2. अब एक और है जो अपने दोनों मैचेस हार सकता है। एक और का मतलब इन एडिशन टू ए एंड सी, ए और सी के अलावा भी कोई है जो अपने दोनों मैचेस हार सकता है। क्या वो बी हो सकता है, स्टेज 2 के दोनों मैच हार जाए? नहीं, ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है। क्या वो ई हो सकता है? नहीं, ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है। तो द ओनली पॉसिबल केस कि इनके अलावा ए और सी के अलावा कोई अपने दोनों मैचेस हार जाए स्टेज 2 के, इज डी। तो डी अपना मैच बी से हार रहा है, इसका मतलब बी अपना मैच डी से जीत जाएगा स्टेज 2 में, डी ये मैच जीत जाएगा। और डी अपना दूसरा मैच हार रहा है ई से, डी इज लूजिंग दिस मैच अगेंस्ट ई, तो ई अपना मैच जीत जाएगा ई से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? okay? तो गाइस इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं इस टेबल को थोड़ा और बेटर वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो हमने रेड कलर से लिखे हैं वो सब राउंड 1 के रिजल्ट्स हैं, और जो हम ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है सब राउंड 2 के रिजल्ट्स हैं। W डिनोट्स टू विन, L डिनोट्स टू लॉस। राउंड W1 का मतलब है फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, और W2 का मतलब है राउंड 2 की बात हो रही है। सेम गोज विद लॉस 1 लॉस 2, राउंड 1 में हारने का और राउंड में हारने का डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चंस पे आते हैं बाय वन। पहला क्वेश्चन है, द टीम्स, टीम और टीम्स दो भी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, विद मोस्ट विन इन द इवेंट। अब मोस्ट विन इन द इवेंट की बात करें तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं कि कौन आउट ऑफ 5 कितने मैचेस जीता है, कितने हारा है। टोटल विन्स, टोटल लॉस। अगर हम ए की बात करें तो वो 3 मैचेस जीता है और 2 मैचेस हार गया है। अगर बी की बात करें तो अपने 4 मैचेस जीता है, 2 स्टेज 1 में और 2 स्टेज 2 में, एंड ही लॉस्ट 1 मैच। अगर सी की बात करें तो he was unlucky that day and he lost all 5 matches, lost all 5 matches। डी की अगर हम बात करें तो डी ने 2 मैचेस जीते हैं, वो भी राउंड 1 में, और राउंड 1 में एक मैच हारा था और राउंड 2 के दोनों मैचेस हार गया, यानी टोटल 3 लॉस। ई अपने 4 मैचेस जीता है, ये 4 मैचेस वो जीत रहा है, तो 4 मैचेस ही इज विनिंग एंड ही लॉस्ट 1 मैच। एंड इन द एंड एफ 2 मैचेस जीत गया और स्टेज 1 के अपने तीनों मैचेस हार गया है। एफ ने काफी इंप्रूव किया, देखो यार, नहीं स्टेज 2 में आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टेज 1 में खराब परफॉर्म कर रहा था। ऐसा लग रहा है तुम्हारे मॉक रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे, नहीं पहले खराब चल रहा था, फाइनल डे पर छक्का मार दिया आप। तो द टीम विद मोस्ट विन्स इन द इवेंट आर, मोस्ट विन एक तो ये है बी और एक है ई। तो बी एंड ई आर द टू टीम्स जिनकी मैक्सिमम विन्स है, मोस्ट विन्स है। लेट्स मूव अहेड। The two teams that defeated the leader of stage 1, वो टीम्स जिन्होंने स्टेज 1 के लीडर को हराया है। स्टेज 1 का लीडर कौन था? ये ए, ये अपने तीनों मैचेस जीत रहा था, और इसको हराया किसने स्टेज 2 में? द टू टीम्स दैट डिफीटेड दिस लीडर ऑफ स्टेज 1, one is E and the other one is F. E and F are the two teams जिन्होंने स्टेज 1 के लीडर को हराया स्टेज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेट the only team or teams that won both the matches in stage 2। स्टेज 2 में ऐसी टीम जो अपने दोनों मैच जीत गई, ये तो दोनों हार गया स्टेज 2 में। एक तो बी अपने दोनों मैचेस जीत रहा है, वन इज दिस टीम। दूसरा सी अपने दोनों मैचेस हार गया, ई स्टेज 2 के दोनों मैचेस हार गया। ई अपने दोनों मैचेस जीत रहा है, ई इज विनिंग बोथ द मैचेस ऑफ स्टेज 2, एंड एफ इज आल्सो विनिंग बोथ द मैचेस ऑफ स्टेज 2। तो देयर आर 3 टीम्स, बी, ई
एंड एफ जो अपने दोनों मैचेस जीत रहे हैं ऑफ स्टेज 2. This last question on the screen now. This one. The teams that won exactly 2 matches in the event. Exactly 2 matches. अगर हम इसकी बात करें, टीम ए की बात करें, तो टीम ए की 3 wins और 2 लॉस है, जबकि टीम बी के 2 wins और 3 लॉस है. एक तो ये काउंट होगा एग्जैक्टली 2 wins. इसके तो 0 win और 5 लॉस है. फॉर डी इट इज 2 wins एंड 3 लॉस, ये काउंट होगा. फॉर ई 4 मैच जीता है, बढ़िया खेला है, एंड 1 लॉस. और एफ की बात करें तो उसकी भी 2 wins एंड देयर आर 3 लॉसेस. तो वो टीम्स जो अपने दो दो मैचेस जीत रही हैं वो है बी, देन डी एंड देन एफ. बी कर दिया. टीम दैट वॉन एग्जैक्टली 2 मैचेस इन दिस guy won 3 मैचेस, ये 2 मैच जीत रहा है, ये 2 है. वन सेकेंड गाइस, मुझे लग रहा है वो डेटा फिल करते हुए कुछ ऊपर रह गया. लेट मी चेक. ई एन एफ should be the का कोई डेटा मैंने गलत यहाँ पर करते समय. अरे यार, ये 4 है. दिस 4 मैचेस जीता है, एक हारा है. यानी ये 2 कलर वाली पढ़े हैं, सिर्फ स्टेज 2 पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा. तो द 2 teams that won exactly 2 matches are B and F. Okay, so it was just कलर वाला रीड किया और मतलब राउंड 1 वाला रीड ही नहीं किया, बाय मिस्टेक. चलिए, so this set is done. Guys, keep practicing, and in case you have doubt, you can send me your doubts by telegram group, that is t.me imdng. dng is my name, Dr. Nishant Gupta. So you can send your doubts here. Wait, guys, every Sunday Unacademy conducts a cat combat at 12 noon, Peher, 12 बजे. You can participate and you can win scholarship up to 55 lakh rupees. Use the code DNG live to participate in this combat. Ask a doubt is again very good feature. That you can ask your doubt in my telegram group, or you can also send your queries in ask a doubt feature. Click on ask a doubt, then take a photograph, crop it so that relevant question is asked, and select the correct subject to which the question belongs and send it to us. We'll send you the solution ASAP. These are the upcoming batches, guys, for CAT 2021. So one batch is starting from 30th June. It is a revision batch, then practice batch with experts from 3rd of July, and one batch starting from 7th of July, the excellence batch from 7th of July, and for CAT 2021. So these are plus courses. So for that you need subscription, and उसके लिए you can use the code NG Live. Thank you guys. Thank you.